Hello dear students, today we will do the all book exercises of your Grammarite book, chapter 7 to 12. So take your Grammarite book, open chapter 7, verbs, page number 38. Okay, let's start. Page number 39. First exercise is let's crack it. Complete these sentences using am, is और are. हमें complete करना है ये sentences को use करके am, is और are. So number 1 is I am a student. मैं एक student हूँ. Number 2 is he is a mason. Number 3 is she is a pilot. Number 4 is the balls are white. Number 5 is the bag is heavy. Number 6 is the children are pretty. Number 7 is we are happy. And number 8 is they are tired. So this is the exercise of page number 39. On the next page, this one, page number 41. Okay, fill in the blanks with have or has to complete these sentences. हमको has या have इसमें fill करना है complete करने के लिए sentence. Mostly I, we, you, they के साथ have आता है. I, we, you, they के साथ have आता है. आपको याद रखना है I, we, you and they. इनके साथ क्या आता है बेटा? Have. Okay, let's start. Number 1 is I have a shelf full of books. देखिए I है, I के साथ क्या आता है? Have. You have a basket for fruit. So you भी इसमें से ही है. I, we, you के साथ क्या आता है? Have. You have a basket of fruit. Number 3 है he has a lovely garden. He है ये. I, we, they नहीं है ना. He, she, it इनके साथ has आता है. तो he के साथ has a lovely garden. Number 4 is she has many friends. She है, he, she, it. ओके, उनके साथ क्या आता है? has आता है. She has many friends. We, I, we, you के साथ have आता है. We have a sailboat. Number 6 is they have a pet dog. Okay, it's completed. And the next page is this one. Tick the correct sentence in each pair of sentences. It's a page number 42. Number 1 is जो correct sentence है, जो भी correct sentence का पेयर है उसको हमको टिक करना है. He was naughty. ये correct है. ये है. He were naughty. So he सिंगुलर है, he है, एक है तो was आता है. ये करेक्ट है आपका एंड ये आपका रॉन्ग है. नंबर 2 इज we was excited to go on a picnic. या फिर ये ठीक है, we were excited to go on a picnic. So ये आपका सही है क्योंकि we जो है प्लूरल है आपका. प्लूरल के साथ आपका वर आता है, सिंगुलर के साथ आपका was आता है. ओके, सो टिकट. नंबर 3 वन इज was she hungry. ये तो आपका सिंगुलर है she, बट इसके साथ प्लूरल were, ये प्लूरल के साथ आता है वर. तो सो was she hungry. she सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही was. नंबर 4 इज was I correct. Yes, this is right. Ticket. Were I correct? No, this is wrong. And the last one is I were the class monitor. ये होना चाहिए. I was the class monitor. So I was the class monitor. Ticket.
And the next one is G. Fill in the blanks using was or were with the verbs given in the brackets. Remember to use the ing form of the giving verbs. हमको was या were लगाना है, मैंने आपको भी बताया है, सिंगुलर के साथ was, प्लूरल के साथ were, बट हमको इसमें ing का भी यूज़ करना है, ओके, कि वर्ब में. सो वी हमारा प्लूरल है, वी के साथ वर आ गया है. स्टडी का आपका हो गया है स्टडीइंग, STUDYING, स्टडीइंग, ओके. नेक्स्ट इज आई वॉज, आई है सिंगुलर है, के साथ वाज आता है. आई वॉज सॉल्विंग, सॉल्व का हो गया सॉल्विंग, SOLVING, सॉल्विंग सम्स. नंबर 3 इज you were making a noise. Number 4 is Reema was wearing a nice dress. And number 5 is they were waiting for the class. Okay. Next is let's perfect it. Fill in the blanks using am, is और are. हमें fill करना है ये fill in the blanks को use करके am, is और are. So what is your name? My name is Shruti. How old are you? I am 7 years old. How many members are there in your family? There are 7 members in my family. What is your hobbies? I am fond of reading books and playing games on the computer. Well, nice meeting you. Okay, it's completed. And next one is fill in the blanks using am, is, are with verb plus ing. यूज़ द verbs given in the brackets. जो ब्रैकेट में verb दे रखी है वो ने हमें verb को यूज़ करना है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग am, is, are का यूज़ करना है और ing verb में ing का यूज़ करना है. जैसे कि I am eat का हो गया eating, I am eating my dinner. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है आपका. शी इज़ गोइंग, गो का गोइंग हो गया, शी इज़ गोइंग टू द मार्केट. नंबर 3 है दे आर स्टडिंग. यहाँ पर आर इसलिए आया है क्योंकि ये दे जो है प्लूरल है. दे आर स्टडिंग, स्टडी का स्टडिंग फॉर द एग्जाम. ओके. नेक्स्ट वन इज ही इज प्लेइंग इन द पार्क. Number 5 is we watching a film. Next exercise is choose the correct words to fill in the blanks. Correct words choose करने हैं. ये जो है हमारे fill in the blanks में साइड में ऑप्शंस भी हैं आपके. देखिए those plural है, those के साथ was नहीं आएगा, singular के लिए आता है. Those were his books. He was in class 7 last year. He singular है so was. It was cloudy yesterday. We were happy to hear the good news. Were इसलिए आया है क्योंकि यहाँ plural है, we के साथ were. Number 5 is they were waiting for us at the railway station. They है plural है so they के साथ were waiting for us the railway station. Next exercise is fill in the blanks using was or were with the ing form of the giving verbs. Number 1 is means हमें जो was were यूज़ करना है इनमें फिलअप में और ing फॉर्म का हमें ध्यान रखना है. I was working. I was working in the kitchen. दे के साथ वर आता है, प्लूरल आता है. दे वर रनिंग आफ्टर द थीफ. नंबर 3rd वन इज सम पीपल वर गोइंग
गो का आपका गोइंग हो गया है, सम पीपल वर गोइंग टूवर्ड्स द थिएटर। एंड नंबर 4 इज शी वॉज वॉकिंग, वॉक का आपका वॉकिंग हो गया है, आईएनजी फॉर्म लग गया है, शी हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज आता है। शी वॉज वॉकिंग along the beach। and the last one is the ducks। ducks means बहुत सारी ducks हैं, देखिए यहाँ पर पिक्चर भी है। the ducks were swimming in the lake। बहुत सारी ducks हैं तो उनके लिए वर आता है, प्लूरल है क्योंकि, तो वर और वर्ब में आपका ing ऐड हो गया है, वर swimming in the lake। this exercise is completed। Let's start chapter 8, tenses। okay, and in this chapter page number 47। okay, open page number 47 and then use the verbs given in brackets in the correct form to complete these sentences। करेक्ट फॉर्म यूज़ करके हमको ये जो ब्रैकेट की करेक्ट फॉर्म को यूज़ करके हमें ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो शी रीच्ड होम एट 5 PM। नंबर 2 इज आई एट pancakes for breakfast yesterday। सेकेंड फॉर्म आती है जब पास्ट की बात होती है, पास्ट की बात है तो इसलिए सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। वी प्लेड द न्यू गेम yesterday evening। yesterday evening कल शाम मैंने खेला था, सो प्ले का आपका YED हो गया है ऐड, इसमें प्लेड हो गया है, वी प्लेड। दे sat under the shade of the tree। sit का आपका sat हो गया है। and number 5 is Diana ran after the butterflies in the park। so यहाँ पर आपका run का ran हो गया है, so fill ran। and in the next page, page number 48, this is the page number 48। let's crack it। use will, shall plus verb plus complete these sentences, one has been done for you। आपको will या shall और plus verb का यूज़ करना है, ठीक है, और एक ऑलरेडी आपका हो रखा है और आपको ये जो बॉक्स है, हेल्प बॉक्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना है। नंबर 1 इज इट विल रेन टुमारो, ये आपका ऑलरेडी हो रखा है। आई शैल कैरी द बैग फॉर यू। Number 3 is we will do his work tomorrow। Number 4 is they will eat salad for dinner tonight। will eat आज रात के लिए वो खाएंगे, आने वाले कल के लिए will का यूज़ करते हैं, फ्यूचर के लिए। ओके, सो will eat salad for tonight। we shall meet them on Sunday। okay, it's completed। and the next is let's perfect it। write the sentences are in the present continuous PC, the simple past P और the simple future F। हमें लिखना है प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए PC लिखना है, इस पर जो भी सेंटेंस है उनको पहले रीड करना है, वो देखना है कौन सा टेंस से रिलेट है करता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए PC, सिंपल पास्ट के लिए P और द सिंपल फ्यूचर के लिए आपको F लिखना है। ओके, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यू जब प्रेजेंट की बात चलती है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है, ठीक है। तो आई एम रीडिंग, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है। आई वेंट फॉर अ वॉक, तो हम गए थे, पास्ट की बात हो, गो की सेकंड फॉर्म आ गई है, वेंट सिंपल पास्ट टेंस है कि हम वॉक के लिए गए थे। सो पी, आई शैल वॉच अ फिल्म, आई शैल आ रहा है, तो फ्यूचर की बात है, सो यहाँ पर फिल एफ।
इट विल रेन एट नाइट, आज रात को बारिश होगी, क्योंकि आने वाली कल की बात है, आने वाले दिन की बात है, रात की बात है। सो ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। नंबर 5 इज इट रेन हार्ड लास्ट नाइट, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी लास्ट नाइट, कल की बात कर रहा है, लास्ट नाइट से पता चल रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है, तो ये आपका सिंपल पास्ट है। इट इज़ रेनिंग हैवी, अभी यहाँ बहुत बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग ING से आपको पता चल गया, इट इज़ रेनिंग हैवी। सो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अभी की बात हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एंड नंबर 7 इज़ वी आर ईटिंग लंच, हम क्या कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट में जब काम होता है कि हम खाना खा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आपका वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। एंड ये आपका PC। नंबर 8 इज़ वी विल ईट लंच एट 1 o'clock, हम लंच करेंगे, विल से हमें पता चला है कि अभी हम लंच करेंगे, आने वाले कल की बात हो रही है, अभी हम करेंगे, आने वाले कल या आगे टाइम की बात हो रही है, हम लंच करेंगे 1 बजे, 1 o'clock पर हम लंच करेंगे। सो दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस, सो राइट F। नंबर 9 इज वी एट राइस फॉर लंच, एट से ही पता चल रहा है क्योंकि ईट की सेकेंड फॉर्म है एट से पता चल रहा है जब कहीं भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है तो इसका मतलब यह है वो पास्ट का सेंटेंस है, पुराने समय का सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपका ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, सो राइट P। एंड द लास्ट वन इज दे विल पेंट द हाउस नेक्स्ट वीक, वे जो हैं हाउस को पेंट करेंगे अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते करेंगे, विल से पता चल रहा है आने वाले कल की बात हो रही है। So this is future tense. Okay, so fill F. Okay, and then the next exercise is टिक द करेक्ट सेंटेंस। जो करेक्ट सेंटेंस है वो आपको टिक करना है। दे आर बी इन क्लास 4 नेक्स्ट ईयर, ये रॉन्ग है। दे विल पेंट द वॉल टुमारो, कल की बात बिल्कुल ठीक है, अभी इसी टाइप का सेंटेंस अभी भी आया था कि वो पेंट करेंगे वॉल को, टुमारो कल करेंगे, ये करेक्ट सेंटेंस है। आई शैल वेंट टू अ पार्टी ऑन अ सैटरडे, शैल के साथ वेंट नहीं आता है, ठीक है, फ्यूचर में ओनली जो भी होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, यहाँ पर तो सेकंड हो रही है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। नंबर 4 इज ही इज रनिंग फास्ट इन दिस रेस, बहुत तेज दौड़ रहा है, सही बात है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। एंड द लास्ट वन इज नंबर 5, आयशा विल गो टू द म्यूजियम ऑन संडे, जाएगी, कब जाएगी आयशा, संडे में जाएगी, तो ये आपका विल आ रहा है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज की है, तो ये आपका करेक्ट है। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्पॉट द एरर इन दीज sentences and rewrite them correctly। हमें देखने हैं इनको करेक्टली दोबारा से सही करके लिखना है। दे आर गो ऑन आ ट्रिप टुमारो, आर गो में गो नहीं, गो ये हमें ING ऐड करना होता है यहाँ पर। दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टुमारो। I am went to the dentist today, ये नहीं होना चाहिए था। I am going to the dentist today, went नहीं आता है, go आता है, ओके। नंबर 3 is I am read an interesting book, रीड नहीं, रीड में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, मैं पढ़ रही हूँ, तो वर्ब में ING का यूज़ होता है, सो यहाँ पर ING नहीं है, ये एरर है आपका। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। एंड नंबर 4 इज वी विल बेकिंग अ केक इन द इवनिंग, नहीं, यहाँ पर विल के साथ बेकिंग नहीं होता है, ओनली वर्ब एज इट इज लिखी जाती है। वी विल बेक अ केक, बेकिंग नहीं होता है, ये एरर है आपका। वी विल बेक अ केक इन द इवनिंग। एंड नंबर 5 इज आई क्लीन माई
रूम यस्टरडे, मैंने कल की बात हो रही है, मैंने अभी आपसे बताया था अगर कल की बात होती है, पुराने समय की बात होती है, तो वहाँ पर आपका सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, क्लीन नहीं क्लीन्ड होगा। आई क्लीन्ड माई रूम यस्टरडे। ओके, दिस चैप्टर इज completed. Let's start chapter 9, adverbs. So open page number 52. Page number 52. Open. Now B. Form adverbs by adding ly to the given words. Remember to make the necessary spelling changes. हमें ly एडवर्ब में ly यूज़ करना है, एडिंग करना है ly, और जो स्पेलिंग हमें चेंजेस करनी है वो हमें ध्यान रखना है। तो नॉटी का आपका नॉटीली हो जाएगा, हंग्री हंग्रीली, काइंड काइंडली, जेंटल जेंटली, स्वीट स्वीटली एंड ईजी easily. Okay, and next is fill in the blanks with adverbs. Use the words given in the brackets. ब्रैकेट्स में जो वर्ड है उनको यूज़ करके आपको एडवर्ब बनाना है। सो एडवर्ब अभी कैसे बनाए थे, अभी हमने ऊपर ly ऐड करके, यहाँ भी आपको ly ही ऐड करना है। जैसे माइक वॉकड होम स्लोली, स्लो का हो गया है आपका स्लोली, धीरे से, स्लोली, ठीक है। ही ड्राइव्स द कार, केयरफुल नहीं केयरफुल्ली। नंबर थर्ड इज द बेबी प्लेड हैप्पीली, हैप्पी नहीं हैप्पीली विद द टॉय। नंबर फोर इज आई कैन डू दिस एक्सरसाइज इजीली, इजी का इजीली। नंबर फाइव इज शी स्पोक जेंटली, जेंटल का जेंटली टू द लिटिल बॉय। नंबर सिक्स इज सैम राइट्स नीटली, नीट का आपका नीटली, एंड द टीचर स्पोक वाइज नहीं वाइजली। नंबर एट इज शट द डोर क्वाइटली, शट द डोर क्वाइटली। नंबर नाइन इज जॉन रीड्स द बुक, जॉन रीड्स द बुक क्विकली, क्विक का आपका क्विकली हो गया है, जॉन रीड्स द बुक क्विकली। एंड नंबर 10 इज यू मस्ट स्पीक क्लियरली, क्लियर का आपका ly ऐड हो गया है क्लियरली। एंड नंबर 11 इज सोल्जर फॉर द वॉर ब्रेवली, ब्रेवली, सो ly ब्रेव में ly ऐड हो गया है ब्रेवली। एंड नंबर 12 इज शी सैट ऑल डे, आइडल का हो गया आपका आइडली। ओके, सो IDLY. And the next exercise is page number 53. Match the actions to the adverbs that describe them. Action को हमें मैच करना है जो भी actions को describe करते हैं। The man snored, इसके अकॉर्डिंग करना है। The man snored loudly, and snored मीन्स होता है खराटे लेना, जोर जोर से। सो कैसे snore कर रहा है ये, जोर से, लाउडली। आई डिड माई सम्स, सो फर्स्ट आपका मैच एफ, ओके। एंड नंबर सेकंड इज आई डिड माई सम्स, मैंने कैसे किए अपने सम्स, डी, करेक्टली। एंड नंबर थर्ड इज माई सिस्टर ड्रॉज, कैसे ड्रॉ किया है माई सिस्टर ने, ब्यूटिफुली। And number 4 is the mouse moves quietly. Number 5 is we ate hungrily. And number 6 is we marched smartly. Okay, it's completed. Next exercise is rewrite these sentences by replacing the underlined words with adverbs. जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसको रिप्लेस करके एडवर्ब में, अभी मैंने बोला था एडवर्ब कैसे बनते हैं, ly लगा करके आपको रिप्लेस करके एडवर्ब में उन्हें
दोबारा से लिखना है। नंबर 1 इज आई वॉकड होम स्लो, स्लो नहीं होता है, स्लोली होता है। आई वॉकड होम स्लोली, धीरे से गया, धीरे से। ओके। नंबर 2 इज शी एट हर फूड ग्रीडी, ग्रीडी नहीं, ग्रीडीली, शी एट हर फूड ग्रीडीली। नंबर 3 इज माई ग्रैंड मदर स्पीक्स सॉफ्टली, माई ग्रैंड मदर स्पीक्स, सॉफ्ट का आपका सॉफ्टली हो गया है। बस इतना सा आपको इसमें चेंजेस करना है, नॉट अ बिग डील। नंबर 4 इज द मैन शाउटेड एंग्री, एंग्री का आपका क्या हो जाएगा, एंग्रीली, एडवर्ब चेंज करेंगे, एंग्रीली, द मैन शाउटेड एंग्रीली। नंबर 5 इज शी डांस्ड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुल्ली, कैसे डांस किया उसने, ब्यूटीफुल्ली, एकदम बहुत अच्छे सुंदर ढंग से। सो शी डांस्ड ब्यूटीफुली। नंबर 6 इज द डॉग बार्क्ड नॉइजी, नॉइजी नहीं नॉइजली। ओके, सो ILY, remove Y and add ILY. Number 7 is we must cross the road carefully, not careful, so carefully. We must cross the road carefully. Okay, and number 8 is we must speak polite, polite नहीं politely. We must speak politely, POLITELY, politely. Okay, the next exercise is page number 55. Let's build words. Fill in the blanks with the opposite of the underlined adjectives. जो ये हैं word हैं, adjective हैं, underline जो हैं वो adjective हैं, इनको इनके अपोजिट हमें यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि ये नंबर 1 है, माई मदर हैज़ लॉन्ग हेयर, मेरी मम्मी के लंबे बाल हैं, बट आई हैव शॉर्ट हेयर, लॉन्ग का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पर, शॉर्ट हेयर। नंबर 2 इज द एलिफेंट इज ह्यूज बट द रैट इज टाइनी, जो एलिफेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ह्यूज होता है, बट द रैट इज टाइनी, जो टाइनी में छोटा, बहुत छोटा सा रैट होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। नंबर 3 वन इज माई शर्ट इज़ वेट, वेट मीन्स होता है गीला, मेरी शर्ट जो होती है, मेरी शर्ट जो है वो गीली है। आई एम वेटिंग फॉर इट टू, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किस चीज़ के लिए, टू ड्राई, इसके सूखने के लिए, तो वेट का अपोजिट वर्ड है आपका ड्राई। नंबर 4 वन इज यस्टरडे देयर वाज अ कूल ब्रीज ब्लोइंग बट टुडे इट इज़, जो कल थी वो तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, बट जो आज है वो बहुत गर्म हवा है। कूल का अपोजिट वर्ड हो गया है आपका हॉट। ओके, सो फिल इट। एंड द नंबर 5 इज दिस बॉक्स इज हैवी एंड दैट वन इज लाइट, ये जो बॉक्स है ये तो हैवी है बहुत ज़्यादा, मगर ये जो दूसरा वाला है ये दैट वन इज लाइट, वो हल्का है। सो हैवी का अपोजिट वर्ड आपका लाइट हो गया है। ओके, फिल इट। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज exercise B. Look at the picture and read these pairs of homophones. Complete the sentences with the correct words. One has been done for you. Homophones क्या होते हैं देखिए, words which have the same pronunciation but different meanings and spellings are called homophones. बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन होते हैं, मीन्स बोलने में एक सेम होते हैं बिल्कुल, मगर वो अपने आप में अलग अलग मीनिंग रखते हैं, ठीक है, वो होमोफोन्स होते हैं। जैसे अभी देखिए ये है हेयर, हेयर को भी आप ऐसे ही बोलते हैं हेयर, हेयर मीन्स क्या होता है, बाल होता है, हेयर, द हेयर। बट अगर ये हेयर है इसको क्या बोलते हैं, रैबिट, रैबिट को क्या बोलते हैं, हेयर बोलते हैं। खरगोश होता है तो द हेयर वॉन द रेस, अब हेयर ने वॉन की रेस। देखिए बिल्कुल जो प्रोनाउंसिएशन है इसको भी हेयर बोला जाता है, इसको भी हेयर बोला जाता है, मगर HAIR इस मीन्स होता है बाल, एंड HARA दैट मीन्स रैबिट। ओके, और बनी यू कैन से। एंड नंबर 2 इज मेल, मेल एंड मेल, एक मेल आता है, मैसेज होता है, मेल आया है, ठीक है, एक टाइप का ये मैसेज होता है। आई गॉट रोहन्स मेल यस्टरडे, मुझे रोहन का मेल मिला यस्टरडे, बट मेल, मेल मीन्स क्या होता है, पुरुष होता है। आदमियों के लिए हम मेल वर्ड का यूज़ करते हैं एंड औरतों के लिए फीमेल का यूज़ होता है। ओके, सो बोथ प्रोनाउंसिएशन इज सेम
but meaning is different. Okay. Number third one is ear and ear. सेम है ना. देखिए एयर मीन्स क्या होता है, कान होता है, बट ईयर एक और ईयर होता है जिसका मीनिंग होता है साल, है ना. ऐसे वो आपको पता है ऑलरेडी. आई हैव एंटर्ड क्लास थर्ड दिस ईयर. मैं इस साल थर्ड में एंटर किया हूँ इस क्लास में. तो ईयर मीन्स साल. इस मीन्स होता है दैट मीन्स साल एंड दैट मीन्स कान. नंबर 4 वन इज वीक एंड वीक. WEE के वीक एंड WEAK दैट मीन्स वीक. WEE के वीक मीन्स क्या होता है, सप्ताह, दिन, ठीक है. एंड देन वीक मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत वीक हो रहे हो आप, है ना. दोनों का मीनिंग आपने सुना होगा. जैसे कि ही इज़ वीक ड्यू टू इलनेस. वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है किस चीज़ की वजह से, बीमारी की वजह से. सो प्रोनाउंसिएशन इज़ द सेम, वीक, बट द मीनिंग इज़ डिफरेंट. ओके. And the spelling also is different. He is weak. And okay, let's do the next exercise. Match the adjectives in column A to the nouns they described in column B. Adjective को मैच करना है column A to the nouns. Noun से described in column B. जो describe noun है, नाउन वर्ड्स हैं कॉलम बी में, उनसे मैच करना है. जैसे कि फर्स्ट है आपका टेस्टी. टेस्टी क्या होता है, टेस्टी मैन होता है, हैबिट होता है, टेस्टी फूड होता है. नंबर फर्स्ट इज टेस्टी फूड. नंबर सेकंड वन इज लॉन्ग हेयर. लंबे क्या होते हैं, बाल होते हैं, लॉन्ग हेयर. वाइज मैन क्या है, वाइज मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान मैन. नंबर 4 इज स्वीट हनी. स्वीट क्या होता है, हनी, स्वीट हनी. एंड नंबर 5 इज बैड हैबिट. व्हाट इज बैड हैबिट, बुरी आदत. ओके. नेक्स्ट इज मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए टू चूज इन कॉलम बी टू फॉर्म कंपाउंड नाउन्स. राइट द कंपाउंड वर्ड्स इन कॉलम सी. मैच करना है आपको. जैसे कि स्विम है, स्विम सूट, तो स्विम सूट. नंबर फर्स्ट इज स्विम सूट. टूथ पेस्ट, सो फिल टूथ पेस्ट. नंबर थर्ड इज हेयर कट, फिल हेयर कट. नंबर 4 इज कीबोर्ड, फिल कीबोर्ड. And the number 5 is playground. Okay, so playground. It's completed. Okay, let's start next chapter. That is the chapter 10, preposition. Okay, let's start. Open page number 58. Okay, open page number 58. Now let's crack it. Circle the prepositions in these sentences, then write that they tell us place, time or movement. preposition जो होते हैं उनको आपको सर्किल करना है इन सेंटेंसेस में और उनका टाइप लिखना है कि वो कौन सा टाइप है, प्लेस है, टाइम है या मूवमेंट है. नंबर फर्स्ट इज दैट द स्काई इज अबव अस. हमारे ऊपर होता है स्काई, तो ये प्लेस है. आई सिट बिटवीन जय एंड करण. कहाँ बैठे हैं, बिटवीन, बीच में बैठे हैं. बिटवीन इज द प्रीपोजिशन वर्ड एंड दिस इज प्लेस. नंबर थर्ड इज शी पुश्ड मी ऑफ द बेड. तो मुझे धक्का दिया किस, कहाँ से, पुश्ड मी ऑफ द बेड, बेड पर से. सो ये आपका मूवमेंट है क्योंकि कोई मूवमेंट हो रहा है. जैसे कि द डॉग रैन आफ्टर द थीफ. जो डॉग है वो किसके पीछे भाग रहा है, चोर के. थीफ में चोर के पीछे भाग रहा है, तो कुछ मूवमेंट हो रहा है. सो ये दिस इज द टाइप ऑफ मूवमेंट, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, दिस इज मूवमेंट.
नंबर 5 इज 10 फ्रॉग जम्प्ड ओवर द लॉग। 10 जो है ओवर द लॉग, उस पर कूद रहे हैं फ्रॉग जो हैं, लकड़ी का गट्ठा जो होता है, लकड़ी बड़ी सी, उस पर वो कूद रहे हैं फ्रॉग्स जो। तो ये क्या है, आपका मूवमेंट हो रहा है। सो दिस इज प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। एंड नंबर 6 इज पेंगुइन, द पेंगुइन डाइव्ड इनटू द सी। कहाँ पर जंप कर रहे हैं, इनटू द सी में पेंगुइन। सो दिस इज मूवमेंट। आई क्लाइम्ड इन थ्रू द विंडो। कहाँ से चढ़ रहे हैं, कहाँ चढ़ रही हूँ मैं, विंडो के माध्यम से। सो दिस इज द मूवमेंट। एंड द लास्ट वन इज देयर इज अ लार्ज स्टोर नियर माई हाउस। ये मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा स्टोर है। तो घर के बाहर है, ये आपको प्लेस बता रहा है, जगह बता रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें स्थान बता रहा है कि हम मेरे घर के पास एक स्टोर है। सो दिस इज द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। ओके, जैसे B is look at the pictures of a clown at a circus. Complete the sentence using the giving proposition. One has been done for you. हमें देखना है पिक्चर, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रपोजिशन यहाँ पर फिल करनी है। ओके, जैसे द क्लॉन इज स्टैंडिंग बिसाइड द एलिफेंट। क्लॉन है जो जोकर है, कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये बिसाइड द एलिफेंट, एलिफेंट के बराबर में खड़ा हुआ है। जब बिल्कुल बराबर में ऐसे होते हैं बगल में, तो दिस इज यूज बिसाइड वर्ड। ओके, नंबर 2 इज द क्लॉन विल जंप आफ्टर द एक्रोबैट। ठीक है, इसके बाद वो जंप करेगा। क्लॉन है जो जोकर है, वो एक्रोबैट के बाद जंप करेगा आफ्टर। एंड नंबर 3 इज the clown is somersaulting through the rings. Somersaulting means कलाबाजी करना, कलाबाजी कर रहा है। ये जोकर जो है वो कलाबाजी कर रहा है, किसके बीच में से कर रहा है, थ्रू द रिंग। ये रिंग है, इसके बीच में से वो कलाबाजी कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर 4, द क्लॉन जम्प्ड इनटू द पूल। क्लॉन कहाँ पर जंप कर रहा है, पूल के अंदर। तो अंदर के लिए इनटू, यूज इनटू द पूल। And number 5 is the clown is leaning against the ladder. कहाँ पर खड़ा हुआ है, जोकर जो है कहाँ पर खड़ा हुआ है, अगेंस्ट द लैडर, लैडर के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। लैडर देखिए पीछे है, इसकी पीठ आ रही है इधर की साइड। ओके, अगेंस्ट द लैडर। नेक्स्ट इज लेट्स परफेक्ट इट। लुक एट द पिक्चर, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। हमें ये पिक्चर को देखना है, लुक एट द पिक्चर, और हमें कंप्लीट करना है इसके अकॉर्डिंग कि कौन सा आपका सुटेबल वर्ड होगा। ओके, जैसे कि नंबर 1 है आपका द टेबल इज। टेबल कहाँ पर है, एट द सोफा है, ये इन फ्रंट ऑफ द सोफा। इन फ्रंट, टेबल कहाँ पर है, इन फ्रंट ऑफ द सोफा, सामने है सोफे के। सामने कुछ भी चीज़ सामने होती है किसी चीज़ के, तो इन फ्रंट ऑफ आता है। सो इन फ्रंट ऑफ द सोफा। नंबर 2 इज द डॉग इज ओवर या अंडर द टेबल। सो अंडर द टेबल, देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा डॉग कहाँ पर है, इस टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल। जब नीचे आता है अंडर आता है, ओवर नहीं आएगा, ओवर आता है ऊपर के लिए, ठीक है, अंडर आता है नीचे के लिए। द डॉग इज अंडर द टेबल। द कुशन्स आर ऑन या इनटू द सोफा। कुशन जो है कहाँ पर है, सोफे के ऊपर है ना, ऑन द सोफा। द कुशन्स आर ऑन द सोफा। नंबर 4 इज जिल इज लीनिंग। कहाँ पर खड़ी है जिल, अगेंस्ट द वॉल। कहाँ पर खड़ी है, अगेंस्ट द वॉल। वॉल इधर है, वॉल के सामने खड़ी है, अगेंस्ट द वॉल। जिल इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। द पपीज आर द बास्केट। पपीज कहाँ पर है, इन द बास्केट। ये बास्केट दिख रही है, इसके बच्चे हैं इसके, ठीक है। तो पपीज कहाँ पर है, इन द बास्केट, बास्केट के अंदर है। एंड द 6th वन इज ग्रैंड मदर वॉक्स इन टू द रूम। आफ्टर नहीं आएगा,
ओके, इनटू द रूम, जो ग्रैंड मदर हैं वो कहाँ पर आ रही हैं, इनटू द, जब चल के आ रही हैं रूम में तो इनटू द रूम। ओके, एंड नंबर 7 इज मैक्स विल कम आफ्टर द ग्रैंड मदर। मैक्स कब आएगा, ग्रैंड मदर के बाद आएगा। सो आफ्टर। एंड द नंबर 8 इज द कैट इज सिटिंग, कैट कहाँ पर है, अगेंस्ट या बिटवीन द लैम्प एंड द सोफा। सो द कैट इज सिटिंग, लैम्प बिटवीन, बिटवीन है ना, बीच में है, लैम्प और सोफे के बीच में है, अगेंस्ट नहीं है, अगेंस्ट द वॉल है, बट बिटवीन है, बिटवीन, टिक बिटवीन। ओके, अगेंस्ट नहीं है ये। द कैट इज सिटिंग बिटवीन द लैम्प एंड द सोफा, लैम्प है और लैम्प के साइड में सोफा है, इन दोनों के बीच में कैट है। ओके, ओके। Next exercise is page number 60. Rearrange these groups of words to make meaning sentences. Don't forget to punctuate them correctly. Use capital letters wherever necessary, then underline the preposition in the sentences. आपको दोबारा से लिखने हैं ये जो भी वर्ड है, रीअरेंज करके इनको सेंटेंस बनाना है और पंचुएशन मार्क्स भी लगाने हैं, पंचुएट करना है इनको करेक्टली, और कैपिटल लेटर का भी यूज़ करना है जहाँ पर भी नेसेसरी हो। एंड आपको इसमें प्रीपोजिशंस को फिर अंडरलाइन करना है करेक्ट सेंटेंस लिख करके। दिस नंबर 1 इज़ द आर्म चेयर ऑन कैट इज़ द, सो द कैट इज़ ऑन द आर्म चेयर, सो अंडरलाइन ऑन। नंबर 2 इज अंडर mouse under mouse the is armchair the, so the mouse is under the armchair, mouse जो है वो अंडर है, नीचे है आर्मचेयर के। सो दिस इज द प्रीपोजिशन वर्ड अंडर एंड कैपिटल दिस द, ओके, एंड देन आर्मचेयर फुल स्टॉप। नंबर 3 इज salt putting soap the into is grandmother, so grandmother is putting salt into the soap, grandmother क्या कर रही हैं, salt डाल रही हैं किसके अंदर, into the soap, so underline into, this is the preposition word। number 4 is tree, the against is the ladder, so the tree is against the ladder, so against is a preposition word। And number 5 one is drove garage car the into he the, so he drove the car into the garage, okay। And number 6 is I towards shop the ran ice cream, so I ran towards the ice cream shop, ठीक है, so underline towards, this is the preposition word। And number 7 is the number 7 is kept the is book two between the magazines, so the book is kept between the two magazines, दो magazines के बीच में रखी हुई है book, so underline between, this is the preposition word। and number 8 is pen near the kept cups the, so the pen is kept near the cups, underline near। and number 9 is bus don't off the jump, so don't jump off the bus, underline off। and the last one is number 10 I at to went play out 4 o'clock, so I went to play out at 4 o'clock, so underline at। and the next exercise is write the type of the preposition, underline in exercise B in the ब्लैंक्स ब्लो। अच्छा, ये जो थी वो इसी की थी। सो नंबर 1 जो आपका प्रपोजिशन था ऑन, नंबर 1 जो था आपका अंडरलाइन था ये ऑन, सो ऑन क्या था आपका,
प्लेस। नंबर सेकंड था आपका अंडर, सो दिस नंबर सेकंड था आपका अंडर, दिस इज प्लेस। नंबर थर्ड था आपका मूवमेंट, मूवमेंट हो रहा था, जो ग्रैंड मदर थी वो सॉल्ट को डाल रही थी, सो दिस इज द मूवमेंट, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। एंड नंबर फोर था आपका प्लेस, नंबर फाइव इज मूवमेंट, नंबर सिक्स इज आल्सो मूवमेंट, एंड नंबर सेवन इज प्लेस, एंड नंबर एट इज प्लेस, एंड नंबर नाइन इज मूवमेंट, डोंट जंप ऑफ द बस, मूवमेंट हो रहा है ऑफ द बस, सो मूवमेंट। एंड द लास्ट वन इज आई वेंट टू प्ले आउट एट 4 o'clock, कितने बजे, समय की बात हो रही है, ठीक है, सो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है ये, सो राइट टाइम आल्सो। एंड comprehension, Jay has listed his activities during a day, but he has mixed up the order. Look at the picture and number the sentences in the correct order. ये जितने भी sentences लिखने हैं उसको हमें इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली देख करके आपको करेक्ट करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले उठता है, जय जो है वो उठता है सबसे पहले, एंड देन फिर वो स्कूल जाता है, गो स्कूल, ये स्कूल जा रहा है, देन वो क्लास में एंटर हो रहा है, एंड देन वो प्ले ग्राउंड में भी खेल रहा है, फिर वो अपने ग्रैंडफादर के साथ गार्डन में है, ओके, एंड देन वो यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने ग्रैंडफादर से स्टोरी को सुन रहा है किसी, इसी के अकॉर्डिंग आपके ऊपर सेंटेंसेस लिखे हैं, और नंबर फर्स्ट पर हमें लिखना है, फिर सेकंड पर लिखना है, कैसे आएंगे चलिए दिखते हैं। नंबर फर्स्ट वर्ड है आपका आई गेट आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, ये नंबर फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए आपका। नंबर टू सेंटेंस होना चाहिए आपका दिस वन, इसके बाद क्या हो रहा था, इसके बाद वो स्कूल जा रहा था, देखिए, सो नंबर सेकंड इज आफ्टर आई गेट रेडी आई साइकिल टू स्कूल, मैं साइकिल से जाता हूँ स्कूल, ठीक है। नंबर थर्ड पर क्या होता है, क्लास में एंटर हो रहा है, सो दिस इज आई गो into my classroom, it is near the principal office, जो कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर है, देखिए यहाँ पर छोटा सा प्रिंसिपल ऑफिस यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए प्रिंसिपल ऑफिस उसके पास में ही है मेरे क्लासरूम, सो मैं जाता हूँ फिर अपनी क्लासरूम में एंटर करता हूँ। एंड नंबर फोर इज वी एन्जॉय आवर सेल्फ थ्रू आउट द लंच ब्रेक, हमें लंच ब्रेक में यहाँ क्या मज़े कर रहा है बच्चा, ठीक है, खेल रहा है अपने फ्रेंड के साथ, तो नंबर फोर पर आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा, वी एन्जॉय आवर सेल्फ थ्रू आउट द लंच ब्रेक। एंड नंबर फाइव पर आपका क्या होता है, आफ्टर स्कूल आई हेल्प ग्रैंडफादर इन द गार्डन, स्कूल के बाद वो अपने ग्रैंडफादर की हेल्प करता है गार्डन में, नंबर फाइव पर। एंड लास्ट वन इज नंबर सिक्स, देन वी सिट अंडर अ ट्री एंड ग्रैंडफादर टेल्स मी अ स्टोरी, फिर हम ट्री के नीचे बैठते हैं और ग्रैंडफादर मुझको स्टोरी सुनाते हैं, ओके। सो इनका जो सीक्वेंस होगा ऐसे होगा 1 3 6 5 2 4, ओके, 1 3 6 5 2 4, fill it. Let's start next chapter, that is the chapter 11 punctuation. So punctuation मैंने आपको बताया था, punctuation मार्क्स होते हैं, जैसे आप फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एपिस्ट्रॉफी, फुल स्टॉप का मार्क ऐसे लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क भी ऐसे करके लगाते हैं, ओके, ये सारे के सारे जो जितने भी मार्क्स होते हैं क्या कहलाते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं। सो लेट्स लिंक इट। टीना रोट दीज सेंटेंसेस इन अ हरी, शी फॉरगॉट टू यूज कैपिटल लेटर्स, क्वेश्चन मार्क्स, कॉमास एंड फुल स्टॉप्स, पंक्चुएट एंड रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली। जो टीना है, टीना ने जो ये भी सेंटेंसेस लिखे हैं वो बहुत जल्दी में लिखे हैं और वो लिखना भूल गई, लगाना भूल गई, कैपिटल लेटर और क्वेश्चन मार्क्स, कॉमास, फुल स्टॉप्स etc वो लगाना भूल गई है। हमें दोबारा से इसके जितने जो भी लिखा है उसको करेक्ट करके लिखना है। जैसे कि आई जो होता है, देखिए स्मॉल लिख रखा है इसने, आई कभी भी चाहे सेंटेंसेस के बीच में भी आ जाए वो कभी भी स्मॉल नहीं होता है, हमेशा कैपिटल लेटर में ही आता है। सो यूज कैपिटल लेटर। आई लाइक टू ड्रॉ, कॉमा, पेंट एंड प्ले, जब कुछ दो चीज़ों को अलग अलग करना होता है, सेपरेशन दिखाना होता है, तो हमें बीच में कॉमा लगाना चाहिए। सो आई लाइक टू ड्रॉ, कॉमा, पेंट एंड प्ले, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। व्हाट डू यू लाइक टू डू,
तुम्हें क्या करना पसंद है, ये एक क्वेश्चन है ना, क्या करना पसंद है, क्या व्हाट से पता चल रहा है, एक क्वेश्चन है, सो यूज क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज माई बेस्ट फ्रेंड इज आलिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, आलिया है, सो एम कैपिटल है आपका, बेस्ट फ्रेंड इज आलिया, आलिया का कैपिटल है क्योंकि ये एक नेम है और नेम के लिए हम, ये प्रॉपर नाउन है, सो इसी वजह से ये कैपिटल, आलिया ए इज कैपिटल। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, अगेन से यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रही है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, फिर सो यूज क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट दिस सेंटेंसेस, ओके, एंड कैपिटल वर्ड who, W. Okay, and the next one is page number 63. Read these sentences, then circle the words in which an apostrophe is used to show possession. So possession means अपना बताते हैं, जो possession यूज करते हैं हमें उस पर सर्किल करना है। जैसे दिस इज माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस है। पोजेशन मीन्स अधिकार बता रहे हैं, किसका हाउस है, ग्रैंड पेरेंट्स का, तो ग्रैंड पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट अपॉस्ट्रोफी एस, दिस इज शो द पोजेशन। दिस इज रियाज बुक, ये रिया की किताब है, अधिकार बता रहे हैं किस किताब है, रिया की किताब है, सो अपॉस्ट्रोफी एस इज पोजेशन। आई डोंट लाइक मैसी कबर्ड, मुझे नहीं पसंद है, ये पोजेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। आई डोंट, डू नॉट को ओनली डोंट में लिख दिया है, ओके। एंड नंबर 4 इज दिस इज माई डॉग्स कॉलर, ओके, सो डॉग्स का जो सर्किल इट। आई केप्ट द बुक ऑन रोहन्स डेस्क, कहाँ पर रखी है बुक मैंने, रोहन की डेस्क पर, रोहन्स की डेस्क पर, ठीक है, तो सर्किल इट। And the next exercise is let's crack it. Rewrite these words using an apostrophe with an S. हमें rewrite करने हैं apostrophe को use करके। Number 1 is birds nest, birds nest, बैग्स नहीं है यहाँ पर, nests है, birds ESTS, बर्ड्स नेस्ट, ओके, बर्ड्स के घोंसले, सो अपॉस्ट्रोफी एस, बर्ड्स नेस्ट। नंबर 2 इज मैन हेड, सो मैन अपॉस्ट्रोफी एस हेड्स। चिल्ड्रन टॉयज, सो चिल्ड्रन अपॉस्ट्रोफी एस, चिल्ड्रन टॉयज। एंड द नेक्स्ट वन इज this is match the words in column A with their short forms in column B. One has been done for you. आपको ये कंट्रक्शन कहलाते हैं, देखिए शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, जैसे आर नॉट होता है तो आर नॉट को आरंट लिख देते हैं, AREN, ओ इसमें से हटा देते हैं, ओ की जगह आपका एपोस्ट्रोफी आ जाता है और टी आ जाता है, ओके। बहुत ईजी है ये, आपको प्रैक्टिस कीजिए एंड आपको ये आ जाएगा। आर नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस और ब्यूटीफुल दिखता है इसके, ओके। आरंट। डज नॉट को आप कैसे लिख सकते हैं, डजंट, DOESN, एन के बाद ओ जो है ओ हटा दिया है एंड एपोस्ट्रोफी लगा करके टी लगा दिया, ओ की जगह आपका एपोस्ट्रोफी आ गया है, ओके। एंड द थर्ड वन इज डिड नॉट, सो डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं, DIDN, एन से आपका ओ हटा दिया है, एपोस्ट्रोफी टी, डिडंट। इज नॉट को इजंट, ओके, ISN, एन से आपका ओ रिमूव कर दिया एंड देन टी, इजंट। एंड नंबर 5 इज मस्ट नॉट, सो मसंट, सो MUSTN एपोस्ट्रोफी टी, मसंट। एंड देन कंप्लीट दीज टेबल्स, आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है इसी के अकॉर्डिंग जिससे अभी आपको बताया है। नंबर A इज आई विल को शॉर्ट फॉर्म में आई ऐसे लिखते हैं, यू विल को यू विल, W रिमूव कर देते हैं एंड देन एपोस्ट्रोफी LL, यू विल। हील, ही विल को हील, ही एपोस्ट्रोफी LL।
शी विल को शील, वी विल विल, दे विल देल, आई एम, ये हटा देते हैं आई एम। जहाँ भी हमें एपिस्ट्रॉफी, जो भी वर्ड हमें हटाना होता है उसकी जगह हम एपिस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। यू आर, सो यू एपिस्ट्रॉफी आर ई, ही इज, ही एपिस्ट्रॉफी एस, शी इज, शी एपिस्ट्रॉफी एस, एंड वी आर, वी एपिस्ट्रॉफी आर ई, एंड they are, they apostrophe re. Okay, and the next one is section D is rewrite the sentences using short forms in place of the underlined words. आपको जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज आई विल फिनिश माई वर्क नाउ। सो आई विल अंडरलाइन है, सो आपको आई विल की शॉर्ट फॉर्म होती है आई एपिस्ट्रॉफी डबल एल, डब्ल्यू नहीं लिखते हैं, उसकी जगह एपिस्ट्रॉफी आ जाता है। फिनिश माई वर्क नाउ। नंबर 2 इज यू आर अ गुड स्टूडेंट, सो यू एपिस्ट्रॉफी आर ई, अ गुड स्टूडेंट, ए रिमूव करके एपिस्ट्रॉफी लगा दी गई है, एंड देन आर ई। नंबर 3 इज यू मस्ट नॉट स्पीक रूडली। सो मस्ट नॉट अंडरलाइन है, आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। सो यू MUST मस्ट, एन ओ आपका रिमूव हो जाता है, एपिस्ट्रॉफी टी, स्पीक रूडली। नंबर 4 इज वी आर नॉट लेट, सो वी आरंट लेट, सो आर एन ओ आपका रिमूव हो जाता है, एपिस्ट्रॉफी टी, वी आरंट लेट। नंबर 5 इज ही डिड नॉट प्ले विद, सो ही डिडंट प्ले विद अस, डिड नॉट अंडरलाइन है आपका, डिड डिडंट हो जाता है, ओ आपका रिमूव हो जाता है, उसकी जगह एपिस्ट्रॉफी एंड टी, डिडंट प्ले विद अस। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बी रीराइट दी सेंटेंसेज यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स। आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी है, इसके लिए इन वर्ड्स के लिए जो भी शॉर्ट फॉर्म में लिखे जा सकती हैं। नंबर 1 इज वी मस्ट नॉट लिटर, सो वी मसंट लिटर। मस्ट नॉट को अभी हमने ऊपर भी मसंट में कन्वर्ट कर दिया था, सो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है मसंट लिटर। नंबर 2 इज आई विल हेल्प यू, आई विल की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आई एपिस्ट्रॉफी डबल एल, आई विल हेल्प यू। नंबर 3 इज वी आर गोइंग टू द मार्केट, सो वी आर की शॉर्ट फॉर्म होती है वी आर, ए को रिमूव कर देते हैं, एपिस्ट्रॉफी लगा देते हैं, वी आर गोइंग टू द मार्केट। एंड नंबर 4 इज डू नॉट क्रॉस द रोड ऑन अ रेड लाइट, सो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, क्रॉस द रोड ऑन अ रेड लाइट। नंबर 5 इज दे आर टायर्ड, सो दे एपिस्ट्रॉफी आर ए, टायर्ड, दे आर टायर्ड। ओके, नंबर 6 is she will come home tomorrow, so she apostrophe double L, she'll come home tomorrow, she'll come home tomorrow। she'll come home tomorrow। नंबर 7 इज ही इज नॉट कमिंग टुमारो, सो ही इज नॉट की होती है isn't, he isn't coming tomorrow। Number 8 is I cannot untie this knot, so I cannot की short form होती है can't, so I can't untie this knot। Number 9 is we are going to meet our grandparents, so we are की short form we are, we apostrophe RE, going to meet our grandparents। And number 10 is who is at the door, so whose, who is की short form होती है whose at the door। okay, section C is punctuate and rewrite these sentences, use an apostrophe wherever necessary। आपको ये जो नीचे सेंटेंस है उनको पंचुएट करना है, मीन पंचुएशन मार्क्स का यूज़ करना है, जैसे फुल स्टॉप होता है पंचुएशन का मार्क्स, क्वेश्चन मार्क होता है, कॉमा होता है, उनको आपको यूज़ करना है, कैपिटल लेटर होता है, सो एंड उसके बीच में आपको एपिस्ट्रॉफी कहीं भी यूज़ करनी है। ओके, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, सो डब्ल्यू हमेशा फर्स्ट, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, सो वेयर डब्ल्यू कैपिटल है, वेयर आर यू गोइंग क्योंकि ये क्वेश्चन है, सो इसलिए क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 इज आई एम फीलिंग हॉट,
सो आई चाहे सेंटेंस के बीच में भी आ जाए वो हमेशा कैपिटल ही होता है. सो आई एम फीलिंग हॉट एंड देन फुल स्टॉप. हुर्रे वी वॉन द मैच. सो हुर्रे एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि हुर्रे मीन्स बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पर कोई. वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, फुल स्टॉप. वी, यहाँ पर वी कैपिटल आएगा, वी वॉन द मैच. एंड नंबर 4 इज देयर्स अ पेंसिल, अ बुक एंड एन इरेजर ऑन माई डेस्क. सो देयर्स THER apostrophe S, there's a pencil, comma, a book and an eraser on my desk. You can use comma आफ्टर बुक, मीन्स आप बुक के बाद भी कॉमा यूज़ कर सकते हैं, फिर एंड यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. ओके, सो हमने यहाँ पर नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर एंड आ गया है. नंबर 5 इज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. सो गेट मी, G कैपिटल, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. Number 6 is roses, lilies, poppies and daisies are flowers. So roses R capital, comma, lilies L capital, poppies P capital and daisies are flowers. Number 7 is who ate the cake. Who, W capital, who ate the cake. Question है, so question mark, use question mark. And number 8 is how old are you. So how, H capital, old are you, question mark. Number 9 is I went to Delhi, Mumbai and Chennai. So I capital, went to Delhi, D capital क्योंकि proper noun है, comma, Mumbai and Chennai. And the last one is number 10, my best friend is Meera. So M capital, my best friend is Meera. Meera क्योंकि name है, proper noun है, so capital letter आएगा. And then full stop. Okay, this chapter is completed. And the last chapter is chapter 12, conjunctions. Open page number 68. Okay, so page number 69, exercise B. Tick the correct conjunctions to complete the sentences. आपको ये sentences complete करने के लिए correct conjunctions पर टिक करना है. So number 1 है आपका we had idli और and सांभर फॉर ब्रेकफास्ट. सो यहाँ पर और आएगा, ये एंड आएगा, सो टिक एंड. वी हैड इडली एंड सांभर फॉर ब्रेकफास्ट. नंबर 2 इज आई लाइक इडली बट स्लैश एंड माई ब्रदर लाइक्स डोसा. मुझे इडली पसंद है मगर मेरे भाई को डोसा पसंद है, सो टिक बट. आई लाइक इडली बट माई ब्रदर लाइक्स डोसा. नंबर 3 इज वी वेंट to the shop or slash but it was closed. So tick but. We went to the shop but it was closed. Number 4 is do you want to buy a pencil and slash but a sharpener. Pencil, do you want to buy a pencil and a sharpener. Number 5 is I have a pencil or slash but I don't have a sharpener. So tick but. I have a pencil but I don't have a sharpener. मेरे पास पेंसिल है मगर मेरे पास शार्पनर नहीं है. Number 6 is will you go to the market today and or tomorrow. Today and tomorrow एक साथ नहीं होगा, today और tomorrow. आज जाओगे या फिर कल जाओगे, और आपको ऑप्शंस बताने के लिए होता है. सो टिक और. ओके, एंड द next page is page number 70. Fill in the blanks with conjunctions given in the box. You can repeat the conjunction. आपको ये बॉक्स में जो conjunction दिए गए हैं वो उससे आपको ये sentences को complete करना है, और आप किसी एक को भी दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि I like sweets and chocolates. I can eat a sandwich and salad for lunch. Number 3 is we did not like the hotel because it was very dirty. Number 4 is they were very tired so they did not go to the party. Number 5 is I am wearing a raincoat because it is raining.
Number 6 is, would you like a board game or a basketball for your birthday? So यहाँ पर चॉइस है, इसलिए यहाँ पर देखिए और का यूज हुआ है. And the next is, let's perfect it. Match the columns to make complete sentences. सेक्शन A है, सेक्शन B है, ये आपको सेंटेंसेस को मैच करना है. करेक्ट सेंटेंस से जैसे क्या है, ग्रैंडफादर मेक्स अ न्यू डिश एवरी डे. सो ये आप मैच कीजिएगा. सी, बिकॉज ही लव्स कुकिंग. बिकॉज ही लव्स कुकिंग. इट वॉज लेट. इट वॉज लेट, सो ग्रैंड मदर टोल्ड मी टू गो टू बेड. Number 3rd one is, I like biscuits, sweets and cakes. Number 4 is, I like bananas but not guavas. Tick it with F. Number 5 is, when I grow up I want to be a teacher or a farmer. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं या तो टीचर या फिर फार्मर बनना पसंद करूँगा या चाहूँगा. आई वॉज लेट फॉर स्कूल बिकॉज आई मिस्ड द बस. मैं स्कूल के लिए लेट था क्योंकि मैंने अपनी बस को मिस कर दिया था. ओके, इट्स कंप्लीटेड. बाय बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.